Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will do revision from chapter 12 Books Make Good Pets. This is a very beautiful poem and it is written by John Agathe. John Agathe is the poet of this poem. So by this poem the poet wants to tell you the importance of reading books in our life. The poet has used different pets in order to explain the importance of books in our life. Now, moving to the first stanzas of this poem, books make good pets and don't need going to the vet. Vet means animal doctors. Okay. So in these lines here the analogy is between dog and book. That means here the poet is doing a comparison between dog and book. Analogy means comparison. When you do comparison between two similar things, that is called analogy. So first few stanzas में जो poet है वो compare कर रहे हैं dog को book से. The poet says that if your pet happens to be a dog, then occasionally it needs to be taken to a vet for checkup, whereas book don't. That means suppose that you have pet in your home. Okay, जैसे आपके घर पे पेट्स होते हैं जो आपके डोमेस्टिक पेट्स होते हैं, सो फॉर दैट यू नीड अ डॉक्टर, animal doctor you need, okay, for their maintenance, for their routine checkup, for their proper care you need a doctor. अगर आपके पेट्स बीमार होते हैं then also you need a doctor, but for book you do not need any doctor. ओके, बुक्स के लिए आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर अ डॉग यू नीड एनिमल डॉक्टर्स फॉर इट्स रूटीन चेकअप, फॉर इट्स मेंटेनेंस, फॉर इट्स प्रॉपर केयर. Now moving to the next line, you don't have to keep them on a lead or throw them a stick. That means book can be kept forever and anywhere without being worried of their whereabouts as compared to dogs who need to be controlled by a lead, that means chain, and sometimes a stick to engage them. That means for your dogs you need a chain. Okay, आप अपने डॉग्स को चेन में रखते हो, उनको उनके गले पे स्ट्रैप बांध के रखते हो, बट बुक्स के लिए आपको कोई भी ना ही चेन की ज़रूरत है, ना ही किसी लीड की ज़रूरत है, ना ही किसी स्टिक की ज़रूरत है. सो फॉर डॉग यू नीड स्टिक, यू नीड चेन टू कंट्रोल देम, ओके, बट यू डू नॉट नीड एनी स्टिक और एनी लीड टू कंट्रोल अ बुक. बुक को कंट्रोल करने के लिए ना ही आपको किसी चेन की ज़रूरत है, ना ही किसी स्टिक की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई चीज़ें करने की ज़रूरत है, बट फॉर डॉग यू नीड अ चेन, यू नीड अ स्ट्रैप. स्ट्रैप चाहिए उनके गले पे लगाने के लिए, चेन चाहिए. सो काफ़ी कुछ चाहिए आपको डॉग्स के लिए, बट बुक्स के लिए कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए होती है. आप जहाँ पे रखोगे बुक आपको वहीं पे मिलेंगी. Now see the next line. They will wag their tails when you flick their dog-eared pages. Dog-eared means used so much that the corners of the books are turned over or torn. That means जब आप बुक्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, सो आपने देखा होगा जो आप नीचे के साइड्स में जो बुक्स के जो पेजेस होते हैं वो टर्न होने लगते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, ज़्यादा आप यूज़ कर लेते हो. सो दैट इज़ कॉल्ड dog-eared. So in these lines, pet dog wag their tail to greet you and welcome you when you come back home after a long day at school. Likewise, books too wag their pages like tail. That means जब आपके डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, पेट्स हैं, जब आप घर पे आते हो, सो जब आपको वो ग्रीट करने के लिए, आपको वेलकम करने के लिए वो अपने टेल को वैग करते हैं. ओके, वैग मीन्स टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, वैग करना. ठीक है, अपने पूंछों को वो हिलाते हैं जो डॉग्स होते हैं आपको ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए. सो सिमिलरली बुक्स ऑल्सो वैग देयर पेजेस. ओके, बुक्स ऑल्सो वैग देयर पेजेस लाइक अ टेल. सो जो बुक्स के जो पेजेस होते हैं वो भी अपने पेजेस को वैग करती हैं, बिकॉज जब आप बुक्स के जो पेजेस को टर्न करते हैं, पलटते हैं,
दैट मीन्स आप भी एक मूवमेंट कर रहे हैं, साइड साइड से मूव हो रही हैं आपके जो पेजेस हैं. सो सिमिलरली वैसे ही लग रहा है जैसे डॉग आपको जब वेलकम करते हैं अपने टेल को वैग करते हैं. सो सिमिलरली बुक्स ऑल्सो वैग देयर पेजेस लाइक अ टेल. ओके, सो बुक्स भी टेल की तरह अपने पेजेस को वैग करती हैं. जब आप बुक्स पढ़ते हैं, टर्न करते हैं पेजेस, सो दैट इज कॉल्ड वैग. ओके, now moving to the second stanza. Books make good pets and don't need going to the vet. One curious look sets them purring on the cushion of your eyes, as if to say, dear browser, you have picked me up before and thrown me aside, but I have more than 9 lives and no need to keep twiddling that piece of string. That means cat. Here in the second stanza you can see that poet has made a comparison between cat. Now he is using cats. Okay, in the first stanza the poet has used dog. First stanzas में poet ने dog use किया है, dog को compare किया है books से. Now in the second stanza the poet is comparing with cats. बुक्स को कंपेयर कर रहे हैं वो कैट से. कैट्स आर रियली क्यूट, lively, gentle and loving animals as pets. They keep the house safe from mice and pests. Books are like cats with 9 lives. Books like cats purr and tempt the readers to read them. Books just like cats boast of 9 lives. They live on for another reader if they get rejected once. That means here the poet wants to say that books also do the same purring sound like the cat used to do. Okay, आपने नोटिस किया होगा जो कैट्स होती हैं वो अपने आप मीन्स अट्रैक्ट करने के लिए कुछ साउंड्स निकालती हैं अपने मुंह से. दैट इज कॉल्ड पर्रिंग साउंड. ओके, सो सिमिलरली बुक्स भी हमें अट्रैक्ट करती हैं. बुक्स भी सेम पर्रिंग साउंड्स निकालती हैं सो दैट जो रीडर हैं, रीडर कौन है? वी आर द रीडर, वी यूज टू रीड द बुक. ओके, सो बुक्स भी सिमिलरली कैट्स की तरह पर्रिंग साउंड्स निकालती हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द रीडर. जो रीडर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बुक्स भी सिमिलरली वैसा ही साउंड निकालती हैं. एंड वी हैव सीन दैट देयर इज अ प्रोवर्ब. ओके, एक मुहावरे हैं कि जो कैट्स होती हैं दे हैव 9 lives. कैट्स की 9 lives होती हैं, मीन्स दे कैन सेव देम फ्रॉम 9 times. कोई भी डेंजर से वो अपने आप को 9 times सेव कर सकती हैं. सो हम कहते हैं कि जो कैट्स हैं उनकी 9 lives होती हैं. सो सिमिलरली द पोएट इज ऑल्सो सेइंग दैट बुक्स ऑल्सो हैव 9 lives. जो बुक्स हैं उनकी भी 9 lives हैं. बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल कोई रीडर है, उनको वो बुक नहीं अच्छी लगी, सो वो उस बुक को नहीं पढ़ेंगे, बट कोई और रीडर आएगा देन वो उसे बुक को पढ़ेगा. या मे भी हो सकता है जो सेकेंड रीडर है उसे भी वो बुक ना अच्छी लगे, थर्ड रीडर आएगा पढ़ने के लिए. सो सिमिलरली रीडर्स आते रहेंगे बुक्स को पढ़ने के लिए. ओके, सो सिमिलरली बुक्स कभी भी रिजेक्ट नहीं होती हैं, उनकी भी काफ़ी लॉन्ग लाइफ है, जैसे कैट्स की होती हैं कि अगर हाँ कैट्स अपने आप को 9 times सेव करती हैं डेंजर से. सो सिमिलरली जो बुक्स होती हैं वो भी अपने आप को सेव करती हैं 9 times. अगर वो रिजेक्ट भी होती हैं सो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट रीडर है वो आएंगे देन वो पढ़ेंगे. बिकॉज सबकी डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, डिफरेंट थिंकिंग होती है, सबकी डिफरेंट लाइकिंग्स होती हैं. सो ज़रूरी नहीं है जो आपको बुक अच्छी लगे वो सामने वाले पर्सन को भी अच्छी लगेगी. सो ऐसा हो सकता है कि बहुत बार आप बुक्स को रिजेक्ट करें, बट कोई ना कोई ऐसा रीडर ज़रूर आएगा जिससे वो बुक बहुत अच्छी लगेगी. सो सिमिलरली यहाँ पे पोएट आपको मेंशन कर रहे हैं कि बुक्स की भी 9 lives होती हैं. नाउ मूविंग टू थर्ड स्टैंजा. बुक्स मेक गुड पेट्स एंड डोंट नीड गोइंग टू द वेट. सो दिस इज द पंच लाइन ऑफ दिस पोएम दैट वी डोंट नीड एनी डॉक्टर फॉर बुक्स बट वी नीड अ डॉक्टर फॉर पेट. They will hibernate in the shell of their covers and patiently wait as long as centuries to be rediscovered in their own good time when some readers rolls them on their cracked spine. That means here
books can be considered good pets and they don't need means you can say that we can consider book as good pets. हम books को कह सकते हैं कि books एक बहुत अच्छी pets है हमारे लिए because they don't need any doctor. Okay, books को किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है बट वी नीड अ डॉक्टर फॉर पेट. बट हमें पेट्स के लिए डॉक्टर चाहिए. बुक्स नेवर फॉल सिक. जो बुक्स होती हैं वो कभी भी सिक नहीं होंगी. बुक्स विल बी देयर इन देयर रिस्पेक्टिव सेल्फ as long as some readers comes to them and roll on. That means here बुक्स को आप जिस शेल्फ में भी रखोगे बुक्स आपको वहीं पे मिलेगी. जब तक कोई रीडर आता नहीं है, उसे उठाता नहीं उस प्लेस से, शेल्फ से लेता नहीं है पढ़ने के लिए, सो बुक्स उसी शेल्फ में रखी रहेंगी. मे बी ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर और सेंचुरीज हो सकती हैं, बट बुक्स उसी प्लेस पे रहेंगी. वो कहीं पे भी नहीं, उसी शेल्फ में वो हमेशा रखी रहेंगी. जब तक कोई और रीडर नहीं आता है वो उसे टच नहीं करता है, निकालता नहीं है उसे पढ़ने के लिए. ओके, सो आपने देखा होगा कि जब बुक्स काफ़ी पुरानी हो जाती हैं सो वो साइड साइड से फटने लगती हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड क्रैक स्पाइन. जो मिडिल पार्ट होता है बुक का जहाँ पे पेजेस सारे अटैच होते हैं, सो दैट इज़ हियर द क्रैक स्पाइन. क्रैक स्पाइन हम बुक्स के उसी पार्ट को कह रहे हैं जहाँ पे सारे पेजेस आपके अटैच होते हैं. सो कोई रीडर आएगा, उसे टच करेगा, देन वो स्टार्ट करेगा उस बुक को रीड करना. सो बुक्स हमारा वेट करती हैं कि कोई रीडर आएगा एंड देन वो उसे पढ़ेगा. सो वी कैन से दैट बुक्स पेशेंटली वेट फॉर द रीडर्स, दैट द रीडर विल कम एंड चूज द बुक्स फॉर रीडिंग. And as you know that different people have different choices for the books, so we can say that and book preserve themselves and live a long life like tortoises. so हम कह सकते हैं कि जो बुक्स होती हैं वो अपने आप को प्रिजर्व करके रखती हैं एंड जो उनकी लाइफ है वो बहुत लॉन्ग है लाइक अ टॉर्टोइसेस. थर्ड आप देख सकते हो, थर्ड स्टैंजा में पोएट ने एक टर्टॉइस से बुक को कंपेयर किया है. सो वी ऑल नो दैट टॉर्टोइस कैन लिव अ लॉन्ग लाइफ. उनकी काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है, अराउंड दे लिव अराउंड 50 to 100 ईयर्स. सो सिमिलरली द बुक ऑल्सो हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ लाइक टॉर्टोइसेस. दे नेवर डाई. जो बुक्स होती हैं दे विल नेवर डाई. दे विल हाइबरनेट विद इन द शेल्फ्स. वो हमेशा उसी शेल्फ में रहेंगी जहाँ जिस शेल्फ में आपने बुक को रखा होगा. ओके, now moving to fourth stanza. Books make good pets and don't need going to the vet. They are as colorful as goldfish in all their stillness and belief. Meet this no whim, books can glow and swim in the bowl of your imagination. So now you can see that in the fourth stanza the poet is used a goldfish. ओके, आप देख सकते हैं कि फोर्थ स्टैंजा में पोएट ने गोल्ड फिश यूज की है. हियर द पोएट रिपीट्स द पंच लाइन दैट बुक्स मेक गुड पेट्स एंड डोंट नीड एनी वेट. दैट मीन्स अगेन द पोएट इज रिपीटिंग द पंच लाइन दैट बुक्स आर गुड पेट्स. हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो बुक्स हैं वो एक अच्छी पेट हैं एंड वी डू नॉट नीड एनी डॉक्टर. एंड हमें बुक्स के लिए किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बट वी नीड अ डॉक्टर फॉर पेट्स. बट जो पेट्स अगर हम रखते हैं देन वी शुड नीड अ डॉक्टर. हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर इट्स मेंटेनेंस, फॉर इट्स रूटीन चेकअप, फॉर एवरीथिंग. ओके, बट वी डू नॉट नीड एनी डॉक्टर फॉर बुक्स बिकॉज बुक नेवर गेट सिक. नाउ just like a goldfish in a glass bowl, the world of books is equally colorful and beautiful even when the books are still positioned in their shelf. Poet says, trust me, and I am not saying that out of my mood swings. Books do glow brightly and swim in the world of imagination and fantasy of your mind. So here the poet is using goldfish in order to explain the beauty and colorful knowledge of book. ओके, सो फोर्थ स्टैंजा में पोएट ने यूज़ किया है गोल्डफिश को
एंड गोल्ड फिश यूज़ करने का रीज़न सिर्फ ये है, आपने भी गोल्ड फिश देखा हो, गोल्ड फिश जब हम देखते हैं सो दे लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, कलरफुल होती हैं, उन्हें देख के हमें बहुत अच्छा फील होता है। सो सिमिलरली जो बुक्स हैं, बुक्स भी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत कलरफुल होती हैं, लाइक गोल्ड फिश की तरह वो भी होती हैं। जिस तरीके से जो गोल्ड फिश है वो एक बोल में स्विम कर रही है, सो सिमिलरली जो बुक्स हैं वो भी स्विम करती हैं नॉलेज से। ओके जो बुक्स हैं वो भी एक बोल है पूरा नॉलेज का, भरा हुआ है उसके अंदर पूरा नॉलेज। ओके सो यू कैन से दैट बुक्स इज फुल ऑफ नॉलेज। ओके बुक्स भी एक नॉलेज से पूरी भरी हुई हैं एंड इट टेक द रीडर्स टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशंस, एंड जो बुक्स हैं वो हमें ले जाती हैं कि हम और इमेजिनेशंस करें। ओके बिकॉज जब आप बुक्स रीड करते हैं, डिफरेंट बुक्स आप पढ़ते हो, सो यू यूज़ टू डू इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशंस करते हो, अपने दिमाग में सोचते हो वो सारी चीज़ों के बारे जो आप रीड करते हो। सो वी कैन से दैट बुक्स टेक द रीडर्स टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, बुक्स हमें ले जाती हैं कि हम इमेजिनेशंस करें। सो बुक्स इट्स ऑल्सो लाइक अ गोल्ड फिश, वो भी गोल्ड फिश की तरह ही हैं। Now we have completed this poem. If you feel any doubt, you can ask me below the video in a comment section. Thank you students. Have a nice day.